Okay, so good afternoon. So this is the fourth day of the data science and analytics class. So yesterday we discussed about the simple programming, uh, basic Python programming, and different types of decision statement, loop statement, and we have already discussed about the string. So now string have the more functionality. So today we will discuss about the string. Strings are among the most popular type in Python. We can create them simply by enclosing characters in quotes. Yesterday we discussed about the quotes, single quotes, double quotes and triple quotes. Single quotes and double quotes are working just like a same, but if you want to apply paragraph multi-line statement, then you need a triple quotes. So how we can update also means suppose we have the variable name hello world, and then we can fetch the particular word from the string and apply some modifications, and we can update it, or we can also assign to a particular variable also. Now these are the different types of string special operators. Okay, so these are the string special operator, means we can apply the plus, multiplication means two times. Let me explain by the example. Mm, Like this is the very simple hello world, and if we want to apply the concatenation, then this will print two times. Uh, okay, yeah, it's visible. So plus operator, concatenation operators, these are also available in Python. We can use it. So concatenation adds value on either side of the operator. Means if we apply the A plus B, so suppose we have the two words like hello and Python, so we can concatenate it. Now if we apply the multiplication, then this will print it two times like this one. Here without this adding itself, if we simply type print where 1 into 2, just like a mathematics two times, so this will print two times hello world 1 and then hello world 2. So this is concatenation or multiplication. So these are so many slice operators. We can fetch the particular character also, range also, in operator, not in operator. We have already discussed in previous class membership, कि मेंबरशिप के हमने लास्ट क्लास में ऑपरेटर्स कि उसके अंदर है या नहीं है, तो ये हम चेक कर सकते हैं. हाँ, हेयर परसेंट ऑपरेटर फॉर्मेट परफॉर्म स्ट्रिंग ऑपरेटर, ये भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं हम. तो इसका भी एक एग्जांपल देखिए. लाइक दिस. सो या सो माय नेम इज परसेंटेज, जैसे हम सी प्रोग्रामिंग में यूज करते थे ना, परसेंटेज परसेंट डी.
तो यहाँ क्या लिखा हमने, माई नेम इज परसेंटेज एंड एज इज परसेंट डी और ईयर। तो अब ये दोनों के लिए ये स्पेसिफायर जैसे हम यूज करते थे, तो यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, परसेंट साइन लगाया और यहाँ पर ब्रैकेट में वो वैल्यू पास कर दी। तो एक में मैंने स्ट्रिंग दिए और दूसरे में नंबर दे दिया। सो इफ रन दिस, so here, so my name is Sunil and age is 42 years. So this is very simple, just like जैसे हम C का printf ही यूज कर रहे हैं एक तरह से। Now this one, this is the example. Uh, yeah, string delay is there due to low network connection. So my name is this one, percentage and age is percent year. So यहाँ पर परसेंट के बाद में हम अपना डेटा पास कर देंगे। हाँ, तो नेक्स्ट इज स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ऑपरेटर। तो ये जो अभी हमने परसेंट एस यूज किया, तो परसेंट सी फॉर कैरेक्टर, परसेंट एस फॉर स्ट्रिंग कन्वर्जन, तो परसेंट आई साइन डेसिमल इंटीजर, परसेंट यू अनसाइन डेसिमल इंटीजर, परसेंट ओ ऑक्टल इंटीजर, परसेंट एक्स, परसेंट कैपिटल एक्स। तो इस तरह देर आर सो मेनी स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ऑपरेटर्स वी कैन यूज। परसेंट परसेंट डी फॉर इंटीजर, परसेंट टी फॉर एक्सपो, या अपर के जैसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन होता ना, ई टू द पावर लिखते हम, तो वो अपर केस में ई यूज करने के लिए। हेलो, जस्ट अ मिनट, या दिस वन, जैसे अगर आपको एक्सपोनेंशियल, देर आर टू टाइप्स, वन इज कैपिटल ई, वन इज स्मॉल ई। इफ यू लाइक कि एक्सपोनेंशियल जैसे होता है ना, ई टू द पावर स्मॉल लेटर में देना है या कैपिटल ई में देना है, सो इफ यू वांट स्मॉल लेटर तो फिर परसेंट ई फॉर स्मॉल लेटर, तो विद लोअर केस ऑफ ई आएगा। और अगर आपको कैपिटल ई के फॉर्म में देना है तो फिर आपको कैपिटल ई लिखना पड़ेगा। तो कैपिटल ई अगर परसेंट कैपिटल ई लिखते हैं तो जो एक्सपोनेंशियल है वो कैपिटल में आएगा। क्लियर? ओके, सो दिस इज, ये यहाँ पर अपर केस में ई देना है तो हमें कैपिटल ई हो जाएगा, और ये हाँ स्मॉल में देना है तो लोअर हो जाएगा। ओके, सो सम बिल्ट-इन स्ट्रिंग मेथड्स आर आल्सो देयर, जैसे कैपिटलाइज, मान लो आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल दे करना है, सेंट्रल विड्थ और फिल कैरेक्टर देना है, रिटर्न स्ट्रिंग पैडेड, मतलब जैसे आपने अगर मान लो 40 आपका एक साइज दे दिया है और आपकी स्ट्रिंग का साइज है मान लो 30, तो वो स्पैन 40 का लेगा और दोनों तरफ वो फिल कैरेक्टर जो भी जैसे जस्ट लाइक स्टार करते ना वैसा स्टार प्रिंट कर देगा। और काउंट, ये इसका एक एग्जांपल करके देख लेते पहले।
ये सो इफ स्टार वेलकम इन डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स क्लास, तो यहाँ मैंने देखिए स्मॉल लेटर्स में लिखा है सबको, और इसी स्ट्रिंग को मैं एस टी आर डॉट कैपिटलाइज कर देता हूँ। तो ये देखिए अब यहाँ पर ये कैपिटल लेटर्स मतलब फर्स्ट जैसे जो होता है ना कैपिटल से स्टार्ट हो गया। और जो दूसरा एग्जांपल सेंट्रल वाला बता रहा हूँ, सेंट्रल वाले में देखिए, हाँ अब ये देखिए स्टार वेलकम इन डेटा साइंस क्लास, तो ये मेरा एक टेक्स्ट है और यहाँ मैंने इसको क्या कर दिया है एस टी आर डॉट सेंटर 40 का स्पान दे दिया है, और जो रिमेनिंग बचे रहेंगे वहां पर ए फेल हो जाए। तो अब इसको मैं जब रन कर रहा हूं तो ये देखिए ये बाकी कैरेक्टर जो ये 30 तक का था, और बाकी जो 10 कैरेक्टर बचे थे सेंटर हमने किया था, तो यहाँ 5 ए इधर आ गए और 5 ए, तो ए की जगह आप स्टार या जो भी कैरेक्टर देना चाहें वो दे सकते हैं। फिर इसी तरह काउंट, अब ये देखिए वेलकम इन डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स क्लास, तो यहाँ पर मुझे आई को काउंट करना है। तो आई यहाँ पर कितनी बार आया है, तो ये मैंने सब स्ट्रिंग दिए और एस टी आर डॉट काउंट और सब पास कर दिया है। और दूसरी बार मैंने ये पास करना है कि डेटा कितनी बार आया है, एक बार सिंगल कैरेक्टर एक बार डेटा। तो व्हेन वी रन इट, सो आई जो है वो 3 बार है कि एक ये देखिए यहाँ पर आई है, एक साइंस में आई है और एक एनालिटिक्स में आई है। तो आई कितनी बार आया है, यहाँ 3 बार आया। और जो वर्ड डेटा है वो मैंने 10 से स्टार्ट किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ से स्ट्रिंग के अंदर डेटा कितनी बार आया है। अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा, जैसे 10 की जगह अगर मैं पहले 10 को देखा हमने, अब अगर मैं यहाँ पर 15 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये 15 से काउंटिंग स्टार्ट करेगा। ठीक है, इसको और बढ़ा देते हैं ये। So this counts how many times str occurs in string or in a substring if starting index beginning and ending index end are given. Baki decode, encodes, ends with, these are the so many find, index, is num, is alpha, is digits. Wait a minute. इज डिजिट फंक्शन, इज लोअर, इज न्यूमेरिक, तो इसको एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दिस इज व्हाट एनकोडिंग। तो अब यहाँ पर मैंने क्या करा, अपनी जो स्ट्रिंग है दिस इज स्ट्रिंग एग्जाम्पल वाव, और इसको एनकोड कर दिया है यूटीएफ में। सो इफ यू रन इट देन दिस अकर्स इन अ डिफरेंट एनकोडिंग फॉर्म्स। Okay, so this one is the str, this is /t for what, टैब। तो जब हम इसको ओरिजिनली प्रिंट करेंगे तो एक टैब आएगा। तो यहाँ पर पहले हम ओरिजिनल स्ट्रिंग प्रिंट करा के देखेंगे, तो पहले ओरिजिनल प्रिंट करा के देखते हैं।
दिस सिंपल ओरिजिनल स्ट्रिंग बॉट दिस इज, और यहाँ पर मैंने स्लैश टी लिखा था, तो स्लैश टी का मतलब क्या होता है, ये टैब, इतना। अब अगर मैं ये जो एक्सपांड टैब्स कर देता हूँ, डिफॉल्ट एक्सपांड टैब्स और डबल एक्सपांड टैब्स, मतलब अगर दो टैब हो तो उसको कम करना है या सिंगल को, तो यहाँ पर देखिए ये सिंगल टैब्स जो डिफॉल्ट वाला था, ये उसने दिस इज वो हटा दिया, और यहाँ पर डबल टैब्स था तो सिंगल ये डबल पे हो गया। तो इस तरह हम टैब्स का भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग के अंदर आप फाइंड भी कर सकते हैं। सो हाउ वी कैन फाइंड, तो फाइंड इज अ वेरी सिंपल फंक्शन, you just find whatever you want like this. So str1 में हमने लिखा welcome in data science and analytics class, और here we want to find out what data, तो यहाँ पर find और इस string को हम find कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जब मैंने simple just find str2, so this will start and find the particular word, so data is there, so 11, okay। राजेश मौर्य सर को भी मीटिंग आईडी भेज दो। अभी नहीं कर सकते, वो बता आदमी बात करें। सेंड str1 डॉट फाइंड str2, और अब यहाँ पर देखिए मैंने 10 कर दिया है, ठीक है 10, तो 10 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 से कर रहा है तो भी पोजीशन बता रहा, लेकिन अब मैंने 40 से करा, तो 40 के बाद मतलब आगे 40 कैरेक्टर्स के बाद अगर कोई डेटा नहीं है, सो दिस विल प्रिंट -1, ओके। Now next is index function, तो there are so many string functions, तो एक एक बार आपको सबकी प्रैक्टिस करना है, ये मैं पूरे कोड आपको दूंगा, जैसे दिस इज स्ट्रिंग एग्जांपल्स वाव, तो एग्जाम, तो एग्जाम यहाँ पर हमने सर्च कर पता करना है, तो ये देखिए एग्जाम कहाँ पर है, 15 पोजीशन पे है, तो जब बाय डिफॉल्ट हमने लिखा तो 15, फिर 10, देन 40 आ गया। तो 15 आया, 15, और लेकिन अब ये देखिए जैसे मैंने 40 करा, सो देयर इज एन एरर, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, जस्ट अ मिनट। So there is an error on each substring not found. अगर जैसे सपोज योर एनरोलमेंट नंबर
तो आप लोग का एनरोलमेंट नंबर क्या होता है कि कॉलेज का जो एनरोलमेंट नंबर है उसमें जैसे 0108 इज योर कोड और दिस इज योर ब्रांच, तो ब्रांच क्या है, टेक्स्ट है। तो अब यहाँ पर नंबर भी है और कैरेक्टर भी है। सो दिस टाइप ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, जनरली हम यूज करते हैं कि उसमें नंबर्स भी रहता है अल्फा। तो वी वांट टू फाइंड आउट कि वेदर द गिवन स्ट्रिंग इज अल्फा न्यूमेरिक और नॉट। सो हाउ वी कैन फाइंड आउट, इज एलनम। तो ये अल्फा न्यूमेरिक फंक्शन बताता है कि आपने अगर कोई स्ट्रिंग दी है वो अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं है। तो आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो हम पास करें, तो ये देखिए, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा फर्स्ट वाला। और दूसरा वाला जो एग्जांपल है उसमें मैंने कोई नंबर्स नहीं लिखा है, सिंपल जो नॉर्मल मैसेज है। सो दिस इज ए स्ट्रिंग बट इट इज नॉट अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग। तो इस तरह हम अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इज अल्फा इज ऑल्सो देयर, कि प्योर अल्फाबेट है कि नहीं है। तो अगर प्योर अल्फाबेट है तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमने उसमें प्योर लिखा है तो ये, तो दिस इज व्हाट, ट्रू। और अगर कोई इसमें दूसरा जैसे कोई स्पेशल सिंबल है या नंबर्स है तो वो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। डिजिट, जैसे अगर प्योर डिजिट नंबर है, जैसे जनरली हम यूज करते हैं फॉर द कंस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि वेदर द यूजर एंटर वैल्यू इज ओनली न्यूमेरिक, डिजिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सो हाउ वी कैन चेक, इज डिजिट फंक्शन। तो अब ये देखिए मैंने 1 2 3 4 5 6 लिख दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 क्या है, डिजिट है, और दूसरा वाला डिजिट नहीं है। तो 1 is 2, अदर इज फॉल्स। नेक्स्ट, इज लोअर। तो अब यहाँ पर देखिए, इज लोअर फंक्शन, जैसे ये मैंने लिखा, देखो टी कैपिटल लिखा है, HIS, इसको इस तरह लिख दिया। सो व्हाट, इसको हम स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो ये मतलब कौन से में स्मॉल लेटर्स है, oh sorry, this is not convert, this is just check whether the given string is having the only lower character or not. So is lower, तो अब यहाँ पहले वाले में तो मैंने कैपिटल लेटर का यूज कर लिया है तो यहाँ फॉल्स आ जाएगा। और दूसरी वाली स्ट्रिंग में एक भी कैपिटल लेटर नहीं है, ऑल आर इन स्मॉल लेटर्स, तो वो ट्रू हो जाएगा। और देखें, यस, इज न्यूमेरिक, ये चेक करेगा। यहाँ पर मैंने THIS जोड़ दिया तो फॉल्स आ गया, यहाँ नंबर थे तो नंबर आ गया। वेदर द स्पेस इज ऑल्सो चेक बाय इज स्पेस फंक्शन। तो अब इसको देखें, str, यहाँ पर मैंने ब्लैंक स्पेस लिखा है, ठीक है, और str.isSpace, तो ये वाली जो स्ट्रिंग है ये ब्लैंक है, तो ये हम इज स्पेस से पता कर लेंगे, तो ये ट्रू रिटर्न आ जाएगा। और ये दूसरा वाला जिसमें कुछ नहीं है, मतलब कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, सो दैट्स व्हाई रिटर्न दी फॉल्स वैल्यू। ये वन मोर फंक्शन, टाइटल। टाइटल होता है जैसे कि कैपिटल्स में लिखते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा सब में, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं बाय पासिंग इज टाइटल फंक्शन। तो दीज आर दी सो मेनी स्ट्रिंग फंक्शंस। एक एक बार आपको सबको प्रैक्टिस करना है ताकि जब भी आपको, दिस इज फॉर व्हाट, रिप्रेजेंटेशन पर्पस। सो दिस इज स्ट्रिंग एग्जाम्पल। तो ये यहाँ पर देखिए, ये हमने टाइटल वाइज लिख रखा है। टाइटल वाइज का मतलब होता है कि पहला कैरेक्टर कैपिटल, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ दिस तो सही लिखा है, इज में यहाँ से हमने स्मॉल लेटर यूज किया है, सो दिस विल रिटर्न वॉज
false value. जिस तरह हमने लोअर चेक करा या जिस तरह हमने लोअर चेक करा था उस तरह हम यहाँ is upper, we can also check the is upper. So how we can check? Like this. So suppose this is a string examples, all characters are in what? Uppercase. So this will return true value, and remaining this one second examples having what? Small letter. तो ये क्या करेगा? False return करेगा. तो यहाँ पर हम check करके देखें. Yeah. So first one is true, second one is what? False. If you want, I am giving right now, you have this code, so that just a minute. This is the Python file, or those having the Google Colab, I have Google Colab link also. I am also sharing you Google Colab link, so that whatever you are comfortable, you can track it. तो जो कोडिंग मैं बता रहा हूँ वो दोनों जगह गूगल कोलैब पे भी है और जुपिटर पे भी है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं. सो नाउ तो अदर वन इज व्हाट? इज अपर हो गया. देन जॉइन ऑल्सो, मतलब अगर हमें किसी स्ट्रिंग में इफ यू वांट टू जॉइन समवेयर, सो वी कैन ऑल्सो यूज जॉइन लाइक दिस. जैसे ये डैश मुझे जोड़ना है, ए बी और सी एक सीक्वेंस है, एंड देन सीक्वेंस यू वांट टू जॉइन व्हाट? एस. तो देखिए किस तरह का आउटपुट आएगा. लाइक ए के बाद क्या आ जाएगा? डैश. बी के बाद क्या आ जाएगा? डैश एंड देन सी. सो जॉइन इज ऑल्सो देयर. सो लोअर, यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट लोअर ऑल्सो. जैसे अभी तो हम चेक कर रहे थे कि वेदर द गिवन टेक्स्ट हैविंग द लोअर कैरेक्टर और अपर कैरेक्टर और नॉट. हियर वी कैन कन्वर्ट ऑल्सो बाय दिस फंक्शन. सो व्हाट? दिस इज स्ट्रिंग एग्जांपल्स. वाओ, दिस इज ऑल कैरेक्टर्स आर व्हाट? अपर केस. तो अब इसको देखिए, जैसे हम रन करेंगे तो ऑल आर इन स्मॉल लेटर्स. तो आपको स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करना है या कैपिटल लेटर में करना है. सो दीज आर दी फंक्शंस अवेलेबल. Okay, one important thing is there. See this one, this is the good example. यहाँ पर देखिए, I am giving two text, in tab और out tab. ठीक है. तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? A E I O U, and here 1 2 3 5 4 1 2 3 4 5 means I am translating one character to other character. मतलब A की जगह 1, E की जगह 2, I की जगह 3, O की जगह 4, U की जगह 5. तो ये ट्रांसलेशन का काम करेगा. तो अब यहाँ पर मैंने एक ट्रांसलेशन टैब बना दिया है बाय str.make_trans इन टैब और आउट टैब. अब मेरी जो स्ट्रिंग है, जैसे ये क्या है? दिस इज स्ट्रिंग एग्जाम्पल्स. वाओ. तो नाउ इफ वी ट्रांसलेट इट, तो देखिए टी एच आई को उसने क्या कर लिया? 3. तो आई की जगह उसने 3 कर दिया. देन एस स्पेस, देन अगेन आई, देन 3 एस string अगेन 3 एक्स, एंड देन व्हाट? एग्जाम्पल का ई जो था, सो ई इज रिप्रेजेंटेड बाय 2, तो ई की जगह उसने 2 कर दिया. सो दिस इज ट्रांसलेशन फॉर्म. Maximum characters, you can also find out the maximum character from your string. Like this. Suppose again this is a string,
हियर वी वांट टू फाइंड आउट विच वन इज मैक्सिमम। अल्फाबेट में होता है ना, जैसे कौन सा कैरेक्टर हमारा मैक्सिमम है, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हियर वाई इज देयर, बिकॉज यहाँ पर हमने रियली वर्ड यूज किया, एंड हियर नो वाई इज देयर, सो मैक्सिमम इज नॉट ई एक्स एक्स, तो एक्स आ गया। तो अल्फाबेट का हमने कौन सा मैक्स कैरेक्टर यूज किया अपने टेक्स्ट में, वो हम चेक कर सकते हैं। सेम हम मिनिमम भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे ये वाली साइट है, इसमें सबसे डॉट लोएस्ट होता है, तो डॉट यहाँ पर आ गया है साइट का एड्रेस में, और बाकी यहाँ पर जैसे कैपिटल ए है मिनिमम। You can also replace one text to another, मतलब रिप्लेस भी हम कर सकते हैं। तो देखिए, दिस इज स्ट्रिंग एग्जाम्पल, वाओ दिस इज रियली स्ट्रिंग। तो यहाँ पर जो इज लिखा है उसको मैं वॉश कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ देखिए थोड़ा मैंने अलग लिखा है। एक काम करते, पहले जैसे आप सिंपल लिखिए, ये इसको वॉश करना है, तो वो इसको वॉश कैसे करेगा, देखिए THIS, ये वाला इस भी ले लिया उसने, इसको वॉश कर दिया, स्पेस, फिर ये वाला इस लिया इसने, उसको वॉश कर दिया, और यहाँ पर भी THIS वॉश कर लिया। लेकिन माई रिक्वायरमेंट इज व्हाट, इंडिविजुअल इज, कि प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करना है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक स्पेस देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इज अ डिफरेंट वर्ड, उसके पहले एक स्पेस होगा, एक बाद में भी होता है। तो पहले हम एक स्पेस लेके रन करते हैं। तो ये रन करके देखा हमने, तो ये देखिए, दिस इज वॉज स्ट्रिंग एग्जाम्पल्स, वाओ दिस वॉज रियली स्ट्रिंग। तो इस तरह ये कर लेगा। Now you can find a particular character also. This is a really a string examples, wow. तो अब यहाँ पर मुझे is को सर्च करना है। So if I am running it, so this will run starting from, जैसे वो इस वाले इसको भी लेगा टू, फिर यहाँ पर लेगा, तो इस तरह वो कौन सी पोजीशंस पे है, कहाँ पर है, वो is है या नहीं है, तो जहां से हमें पता करना है वो हम पता कर सकते हैं। Even we can also find out the index also. So this is the written the index of the particular positions where your text found in string. This one. So here written what 5, ये यहाँ से हमने देखा तो सबसे पहले वो यहाँ मिल गया, तो इस तरह हम रिटर्न कर सकते हैं। Adjust R steps, split in text, start with steps, swap cache. There are so many string functions are available. You can just one by one run it only. I am giving you whole code. एक एक बार आप रन करेंगे तो आपको उसका फंक्शंस की फंक्शनलिटी पता चल जाएगी। So now I am moving to the presentation part. सो दीज आर ऑल आर फंक्शंस, एक एक करके आपको सबके सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने हैं, एक छोटे से प्रोग्राम्स। एंड दिस इज द स्ट्रिंग सम एग्जांपल, कुछ प्रोग्राम्स मैंने छाटे हैं, जैसे राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम नॉट, जो सी में आपने बनाए, सब स्ट्रिंग में प्रेजेंट लेंथ निकालना है, इवन लेंथ, एक्सेप्ट विद कंटेन्स ऑल वोवेल्स, काउंट द नंबर ऑफ मैचिंग कैरेक्टर्स, डुप्लीकेट है कि नहीं है, विच आर ग्रेटर देन गिवन लेंथ, जैसे अगर हम कोई लेंथ दें तो आपकी स्ट्रिंग में जो वर्ड है वो 3 से बड़े वाले कितने वर्ड है, तो हर वर्ड्स की आपको लेंथ निकालनी है और चेक करना है। तो इस तरह आप स्ट्रिंग की प्रैक्टिस कर लें। स्ट्रिंग हमारा कल नहीं हो पाया था, वही वाला पार्ट है। नाउ वी मूव
to the today another presentation of topic